ضلع جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کی جانب سے عظیم و شان اصلاح معاشرہ کانفرنس کا کیا گیا انتخاب۔ آپ کو بتا دیں راجدھانی لکھنؤ تھانہ دوبگہ اندھے کی چوکی کے انترگت لکھنؤ گلو گارڈن الکبیر لون کے پاس اصلاح معاشرہ کانفرنس کا زیر انتظام ضلع جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کی صدارت میں منتخب کیا گیا۔ اس کانفرنس کا موضوع تھا لوگوں میں خیر و صلاحیت کا جذبہ بیدار کرانا اور سماج میں اچھائی کو فروغ دینا۔ اس مقصد سے کانفرنس کا کیا گیا آغاز۔ اس کانفرنس میں ملک کے نامور مشہور و معروف علماء و خطیب مولانا شیخ ڈاکٹر معراج ربانی حفیظ اللہ و مولانا شیخ جرجیس انصاری حفیظ اللہ رہے۔ مولانا شیخ جرجیس انصاری نے اپنے خطاب سے لوگوں کو اچھائی پر چلنے و عمل کرنے کی دعوت دی اور ہر اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی۔ محبت کا پیغام دے کر اپنے خطاب کو مکمل کیا۔ مولانا شیخ ڈاکٹر معراج ربانی نے بھی لوگوں کو ایک اللہ اور ایک رسول کی باتوں سے نوازا۔ محبت کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا کانفرنس کے ذریعے کوشش کی۔ اس موقع پر صوبائی امیر شیخ مولانا شہاب الدین مدنی حفیظ اللہ و دیگر علماء موجود رہے۔ ضلع جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے امیر مولانا شیخ ڈاکٹر شاہد مبین ندوی حفیظ اللہ و ناظم ضلع جمعیت اہل حدیث لکھنؤ محمد ندیم صدیقی حفیظ اللہ و خازن ضلع جمعیت اہل حدیث لکھنؤ شیخ عثمان حفیظ اللہ شفیق حفیظ اللہ و ضلع جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کی پوری ٹیم و سبھی والنٹن اور زیر انتظامیہ و ہزاروں لوگ عورتوں نے کانفرنس میں شرکت کی۔ تھوڑا پیچھے ہو جائیے، آپ پیچھے تھوڑا کر جائیے بھائی۔ آمین۔ ساتھ میں رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء کرام کو ان کی صحت اور عافیت کے ساتھ خوب برکت عطا فرمائے اور اسی طریقے سے توحید کا عالم بلند کرتے رہے، توحید کو، سنت کو، اتباع نبی کو، دین اسلام کے صحیح رخ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے۔ بہت ساری غلط فہمیاں جو آ گئی ہیں ان کو اسی طرح سے دور کرتے رہے۔ حضرات گرامی، ہمارا پڑھ لیا ہو 5 دن میں اگر ایک قرآن بھی اگر وہ مکمل کر لیتے ہوں گے تو اس حساب سے 20-33 کی جگہ پر 40 سال 42 سال 45 سال میں انہوں نے قرآن ہو سکتا ہے پڑھ لیا ہو، لیکن یہ یقین میں لایا جا سکتا ہے 18,000 والی بات نہیں۔ پورے واقعے کو بتانے کا مین مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے وہ اپنے عملوں کا حساب کیا کرتے تھے، اس طریقے سے۔ اور حالات یہ تھے، آج ہم دیکھ لیں نماز، روزے، ان تمام عبادتوں کا حال، تو ہم انڈیا اور آسٹریلیا کے ورلڈ کپ کی وجہ سے ہم نماز عشاء چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم بعد میں پڑھ دیں گے، ترک کر دیں گے۔ یہ احساس تھا۔ آج ہماری نمازیں جو چھوٹ رہی ہیں، میری بہنیں بھی سنیں، میری مائیں بھی سنیں، بخاری شریف کا یہ واقعہ غور کرو۔ حضرت انس اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ایک جنگ ہو رہی تھی، جنگ تستر، جس میں ہمیں قلعے کو فتح کرنا تھا، قلعے کو فتح کرنا تھا، قلعے کو حاصل کرنا تھا۔ یہاں سے اب اندازہ لگائیں، اس قلعے تک ہم لوگ پہنچ بھی گئے، لیکن فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، معاشرے کی دھوتی ہوئی لگ رہی ہے۔ غور کرو، فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اشاروں میں باتیں کی، کیا ہونا چاہیے؟ اگر نماز پڑھنے لگتے ہیں تو اس قلعے کو حاصل کر لیں گے یہ کافر، اور اگر ہم تھوڑا سا اور محنت کر لیتے ہیں تو قلعے تک تو پہنچ ہی گئے، بس جھنڈا لہرانا باقی ہے۔ اشارہ ہوا، چلو ٹھیک ہے، بس قلعہ حاصل کر لو۔ قلعہ تستر کو حاصل کرنے کے لیے جنگ شروع ہوئی اور تابڑ توڑ جنگ میں
फौरन ये लोग कूदे और किले पर झंडा लहरा दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा लहर गया, इस्लाम लहर गया, लेकिन सूरज निकल चुका था। बुखारी के हमारे जिले जरियत के नाज़िम शेख मोहम्मद नदीम सिद्दीकी साहब सैयद राज रब्बानी हफिज़हुल्लाह को रिदाए तकरीबी उड़ाते हुए आपकी खिदमत के अगर आपको दिक्कत हो बताओ, नहीं जाए आप हज़रात तशरीफ रखें और मैं शेख को ये देखो हमारे भाई खड़े हुए, मुझे तकलीफ हो रही है। यहाँ भी कुछ कुर्सियाँ खाली हैं, यहाँ भी कुछ कुर्सियाँ खाली है। बहरहाल अर्ज में कर रहा था कि वो कह रहे थे हजरत मक्का मुकर्रमा में बैठे हैं। मैं आपको देखो हिदायत के लिए कोई सरजमीन सबब नहीं होती। मैं अगर सरजमीन किसी को मुकद्दस बनाती, अगर जमीन किसी को मोतबर बनाती, तो अबू लहब में क्या बात थी कि वो मोतबर न बन सके। और रूम से सुहैब रूमी आ रहे हैं, हबशा से बिलाल हबशी आ रहे हैं, और सर्टिफिकेट वो ले रहे हैं कि पैगंबर इंसानियत, मुहसिर इंसानियत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह मेराज की शब जन्नत के गलियारों की सैर करते हैं, आके वापस कहते हैं बिलाल कौन सा काम तुम करते हो कि मैं जन्नत की सैर कर रहा था, अपने आगे आगे तेरे कदमों की चाल को मैं सुन रहा था। अल्लाह अकबर। किसने ये मकाम रुतबा दिया? जमीन ने दिया। ना 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 ना, जमीनें किसी को मुकद्दस नहीं बनाती, किसी को शरीफ नहीं बनाती। जमीनें अगर शरीफ बनाती तो वही इब्न सलूल वो सबसे बड़ा शरीफों का सरदार माना जाता। अबू लहब ये सबसे बड़े सरदार माने जाते शरीफों के। पता ये चला कि जमीनें न किसी को शरीफ बनाती हैं, न किसी को रजील बनाती हैं। मक्के का अगर अबू जहल जहन्नम में है तो हिंदुस्तान की धरती पर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला अब्दुल्ला इंशाअल्लाह यहीं से वो जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। बात समझ में आई कि नहीं आई अज़ीज़ान गिरामी? तो वो कहते हैं वो शख्स मस्जिद हराम में बैठकर, खाने काबा में बैठकर वो क्या कहता है? दारुल उलूम के बहुत बड़े शेख थे, उनका एक खादिम खास था जो पूरे दारुल उलूम में इंतहाई कवि था, इंतहाई बेवकूफ़ माना जाता था, लेकिन हजरत का खादिम खास था। वहाँ पहले ज़माने में इम्तिहान लेने के लिए मुम्तहिन दूसरे मदरसों से आते थे, एक दूसरे मदरसों में तबादले होते थे, तहरीरी इम्तिहान नहीं होते थे। और आज भी बाद मदरसों में तहरीरी नहीं तकरीरी होते हैं। उस मदरसे कुछ मुदर्रिसीन आते हैं, इस मदरसे में इस मदरसे के मुदर्रिसीन का कौन मदरसे? तो वो मुदर्रिस आए तो उनको पता था कि दारुल उलूम में एक इंतहाई बेवकूफ़ किस्म का तालिब इल्म है जो हजरत फला का नाम। इसमें उन्वान इस्लाह मुआशरा है, इसका मौजू। तो इस्लाह मुआशरा का जो मौजू है वो बहुत वसी है, चंद पॉइंट उठाए गए। और ज़ाहिर है जब इस्लाह मुआशरा की बात होगी तो तौहीद की बात आना तो ज़रूरी है, अपनी ज़ात से सलाम करेंगे। और हमारे जो बुज़ुर्गों ने जो पॉइंट कहा है वो इस वक्त की ज़रूरत है। मसलन शेख रबी साहब ने जो कहा कि तक़वा अभी हमारे ईमान सब अमल की बुनियाद तक़वा है, ठीक है। मैंने अपने खिताब में एक अहम पहलू किसी जानिब बहुत कम तवज्जो है, वो है मीरास। इस्लाह मुआशरा के एक अहम पहलू है मीरास, यानी विरासत से बेटियाँ बहनें सब महरूम की जा रही हैं और ये उनका हक़ है, बुनियादी हक़ है जिसको अल्लाह ने मुतय्यन किया है कुरान मजीद में। और उससे आज बर्र सग़ीर की अक्सरियत जो है एकदम मग़फ़रत का शिकार है। इस उससे आपका जो संदेश जा रहा है जी, जो आप कहना चाह रहे हैं उसके लिए, लेकिन जो आज यहाँ हम लोगों को जो है कि तंजीम जमा हुई है जी जी, तो इसके अलावा और उसके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए असल में फ़र्द की इस्लाह से समाज सुधरता है, ठीक है। और जैसा कि हमारे खतीब ने कहा कि समाज सुधार तंजीमें बहुत सी और सब कोशिशें कर रही हैं, लेकिन वो कामयाब क्यों नहीं है? उसकी वजह ये है कि अपने को नहीं सुधारते हैं, दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो हमें पहले अपने को सुधारना चाहिए। तो ये संदेश जो है ये सब के लिए है। और ये मुल्क हमारा जो है गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक रूप है और यहाँ सब लोग मिलजुल करके रहते हैं।
तो हम जब एक समाज में रहते हैं तो हमें मिल करके रहना चाहिए। जैसे इस्लाम में पड़ोसी, चूँकि वक्त हमारे पास कम था और खुतबा की तादाद भी कम थी, वरना एक अहम पहलू था कि पड़ोसियों के हुकूक क्या हैं। ठीक है, आप देखिए इस्लाम में पड़ोसियों की 3 किस्में बयान की गई हैं। एक वो पड़ोसी कि जिसका 3 हक़ है, वो मुसलमान हो, रिश्तेदार हो और पड़ोसी है। एक वो पड़ोसी जिसका 2 हक़ है हमारे आपके ऊपर, एक वो जो कि मुसलमान है और पड़ोस में है। एक वो पड़ोसी जिसका हमारे ऊपर कम से कम एक हक़ है कि वो हमारे पड़ोस में है, अगरचे वो गैर मुस्लिम है। हज़रत अब्दुल्लाह मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बड़ा मारूफ वाक़या है कि उनके बगल में एक यहूदी रहता था और इतना उसके साथ अच्छा बर्ताव करते थे वो कि वो हालात से मजबूर के बाद में घर बेचने पर जब मजबूर हुआ तो ख़रीदार से कहा कि भाई इस घर की कीमत कितना है, मसलन 10,000 है, लेकिन हम आपसे 20 लेंगे। अब वो कह रहे हैं कि किसी को दिखा दीजिए मकान अपना, 10 के लायक ही आपका मकान है, जिस तरह बना हुआ है, ये 20 क्यों? क्या देखिए हालात से मैं मजबूर हूँ, 10 तो मेरे मकान की कीमत आप खुद लगा रहे हैं, 10 मैं अपना पड़ोस बेच रहा हूँ। यहाँ से मैं बेच के जाऊँगा, कहीं मकान ख़रीदूँगा सस्ते में, लेकिन अब्दुल्ला मुबारक जैसा पड़ोसी मुझे नहीं मिलेगा। तो हम ये पड़ोस बेच रहे हैं। अब्दुल्ला मुबारक रहमतुल्लाह को मालूम हुआ, उसको बुलाया, उसकी ज़रूरत पूरी की, तुम्हें बताना चाहिए था। ठीक है, ये आदमी बहुत सी बात होती है कि पड़ोसी से नहीं बताता है। जो हमारे इस्लाम में ये जो मौजूद है, मुआशरे की इस्लाह कैसे हो। हम एक समाज में रहते हैं, मुख्तलिफ धर्म मज़हब के लोग हैं या मुख्तलिफ नज़रियात के लोग हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम मिल करके रहें और हम अगर सुधार की कोशिश करें तो सुधार की कोशिश हमारी इस अंदाज में हो कि अगले को कोई परेशानी और तकलीफ ना हो। तो आज के इस प्रोग्राम का उद्देश्य आपका क्या करना चाह रहे थे इसके बारे में? देखिए ये हमारी ज़िले जमीयत की टीम आपके सामने मौजूद है, सारे वालिद मौजूद हैं, जिम्मेदार करे गए हैं। ज़िले जमीयत अहले हदीस लखनऊ ने देखा कि हमारा जो मुआशरा है, जो समाज है, इसके अंदर बड़ी बुराइयाँ हैं और बुराइयाँ होती जा रही हैं। तो किसी न किसी को आगे बढ़कर इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए कोशिश करनी है। आज ख़ास तौर से आप देखिए लड़कियों के सिलसिले में, औरतों के सिलसिले में बड़ी बुराइयाँ आम हैं। बच्चियों को उनका हक़ नहीं मिलता और इसी तरीके से उनके हक़ को लोग मार के खा जाते हैं। जहेज़ लिया जा रहा है, शादी ब्याह की उम्रें बीती जा रही, रिश्ते नहीं आ रहे हैं और उसकी वजह हमारी खराबियाँ हैं। ये है नशा की है, नशे की खराबियाँ हैं, चोरी है, सूद लेना है, दूसरे की मदद ना करना है। इस तरह से बहुत सारी बुराइयाँ हमारे समाज में मौजूद हैं। तो हमारी ये ज़िले जमीयत ने फैसला किया कि क्यों ना इसके ऊपर एक प्रोग्राम रखा जाए और हम लोगों से अपील करें कि हम शुरुआत करते हैं अपने आप से, कि हम सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे और इन बुराइयों को अपने ज़ात से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे उलमाए कराम सब आए और उन्होंने अलग अलग अपने बुराइयों को समाज की इस्लाह के लिए कोशिश किया और बयान किया उन्होंने, और लोगों ने, आपने देखा ही होगा कि कितनी दिलचस्पी से लोगों ने सुना और लोगों ने हाथ उठाए। जब ये बात कही गई कि आप हक़ देंगे अपनी बेटियों का, बहन का, लोगों ने हाथ उठाया, हम अपना हक़ देंगे। इसी तरीके से और भी। तो ये ज़िले जमीयत की एक कोशिश है, हम लोग ज़मीनी सतह पर ये काम करते हैं कि गरीबों को, मोहताजों को, परेशान हालों को उनकी मदद की जाए, समाज आगे आए, लोग आगे आए, नफ़रत की दीवारें। है कि आने वाले टाइम में जितनी भी तंजीमें बनी हैं या जितने भी मौलाना या बड़े मौलाना हैं जैसे राशिद साहब हैं, तो क्या इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की है? देखिए इससे पहले हमारा एक जलसा हो चुका है इत्तेहाद उम्मत के नाम पर, जिसमें हमने ये कोशिश की थी कि जितने मसालिक के और सब जो फ़िरक़े के उलमा हैं, जो मुसलमानों में जो धड़े हैं, उन सबको इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करने के बाद सबको इस बात पर आमादा किया जाए कि समाज के लिए कोशिश करें, समाज के लिए मेहनत करें। आपको याद होगा जब ये जो है प्रोग्राम हुआ था वहाँ पर गांधी भवन में हुआ था प्रोग्राम, और एक हुआ गांधी भवन में प्रोग्राम हुआ। तो आप ये देख रहे हैं कि इस तरीके से हम लोग वक्तन फ़ौक्तन कोशिश करते रहते हैं। अब उसका तरीका कभी अलग होता है, कभी ऐसा हुआ कि अपने लोगों को बुला लिया और उनके दरमियान बात कर दी, कभी है कि दूसरे लोगों को भी बुला लिया, दूसरे उलमा को भी बुला लिया कि भाई हम ये बात कह रहे हैं, आप अपने लोगों से कह दीजिए, हमने अपने लोगों से बात कही, आप अपने लोगों से कह दीजिए। तो हम इस तरीके से ये प्रोग्राम करते रहते हैं और ज़्यादा तो समाज के अंदर जाके लोगों से मिल के गुफ्तगू करके उनके लिए काम करते हैं। तो इस तरीके से कोशिश होती रही है और आइंदा भी होंगी इंशाअल्लाह। अच्छा, ये जो मदरसे की मुतालिक जो बात आ रही है कि अभी जो दादा के मदरसे यानी क्या कहते हैं आतंकवादी निकलते हैं या जो बातें और भी बातें आ रही हैं कि पैसा लेके ये लोग पढ़ाई। देखिए बात यह है कि अच्छे और बुरे हर समाज में रहते हैं, हर जगह रहते हैं।
कुछ का काम होता है काम करना और कुछ का काम होता है काम बिगाड़ना। कुछ का काम ये करना धरना कुछ नहीं है, लेकिन दूसरों पर तनकीद करो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है बहुत मजबूत है और इस तरह पर वो निगाह रखती है कि आतंकवाद कहाँ पनप रहा है, और आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई उसकी जगह नहीं थी। उसको इस पिशाच माइंडेड जो भी लोग होते हैं, गलत माइंडेड जो भी लोग होते हैं, वो गलत जगह अपना काम करते हैं। अच्छे बुरे हर समाज में होते हैं, हर तबके में होते हैं, समाज में हर जगह होते हैं, पूरी दुनिया में है। ना सारे लोग अच्छे हैं और ना सारे लोग बुरे हैं। हमारे अंदर कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं और कुछ लोग हैं जो इंतहाई वाहियात हैं। तो इसको किसी एक पर्टिकुलर मजहब से जोड़ना या फिरके से जोड़ना या किसी जो है समुदाय विशेष से जोड़ना, ये तो ठीक नहीं है और ये तरीका और ये जहनियत ही गलत है। जो गलत है वो गलत है, कोई भी करे। आप उसका नाम न देखिए, उसका धर्म न देखिए, उसकी जाति न देखिए, कुछ मत देखिए। जो चोर है तो वो चोर है, जो डाकू है तो वो डाकू है, जो आतंकवादी है तो आतंकवादी है। उसमें ये ना कहिए कि ये फला धर्म का है, फला धर्म का है, फला जाति का। ये सब करना हमारे ख्याल से ये बेवकूफ़ी की बात है और कुछ नहीं। ABL 24 न्यूज सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें। ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।